हेलो फ्रेंड्स। तो हम पार्ट 2 देख रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का अपेंडिक्स 3 के लिए, ठीक है, जिसमें स्टोर एंड वर्कशॉप सेक्शन आता है। तो क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोलता है, देखो। द आइटम ऑफ स्टोर्स, जस्ट ए मिनट, हाँ, द आइटम ऑफ स्टोर्स विच डू नॉट ऑर्डिनरली वियर आउट or are required for essential use in emergencies for the maintenance of core assets of Indian Railways, though not moved for more than 24 months and kept for longer times, are categorized as options: emergency store, not surplus, movable surplus, या dead surplus, या surplus stocks। राइट आंसर है इमरजेंसी स्टोर, नॉट सरप्लस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोजेक्शन फॉर द एंटिसिपेटेड क्लोजिंग बैलेंस अंडर वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस WMS अंडर PH 7200 फॉर द जोनल रेलवे वर्कशॉप शुड रिप्रेजेंट ऑप्शन anticipated works in progress of ongoing activities only, second option anticipated expenditure cleared to final head as part of part 1 outturned statement of the workshops only, third option anticipated expenditure pending items to be cleared to final heads of revenue for the completed works only, fourth option anticipated requirement of funds to be provided for the expenditure incurred by workshop for the ongoing activities only। राइट आंसर है एंटिसिपेटेड वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ ऑनगोइंग एक्टिविटीज ओनली। एंटिसिपेटेड वर्क्स इन प्रोग्रेस ऑफ ऑनगोइंग एक्टिविटीज ओनली, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन बाय जोनल रेलवे वर्कशॉप्स फॉर प्राइवेट बॉडीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, PSUs and private companies based on the deposit work and condition, the performance on cost charge in addition to the cost of work is levied and collected from them and the same are accounted as। उसको किस तरीके से अकाउंट किया जाता है? ऑप्शंस: क्रेडिट्स टू रेवेन्यू डिमांड्स एंड कॉन्ट्रा क्रेडिट टू WMS अकाउंट, credited to Z earnings as contra debit to WMS account, third option credited to Z earnings as contra credit to WMS account, या फोर्थ ऑप्शन क्रेडिट टू रेवेन्यू डिमांड्स एंड कंट्रा डेबिट टू WMS अकाउंट। राइट आंसर है क्रेडिट टू Z earnings एज कंट्रा डेबिट टू WMS अकाउंट। ठीक है, कंट्रा डेबिट तो क्रेडिट टू Z earnings, तो ऑप्शन 2 सही है, क्रेडिट टू Z earnings एंड एज कंट्रा डेबिट टू WMS अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीरियडिकल ओवरहॉल and mid-life rebuilds for various rolling stocks of Indian Railways involve withdrawing them from traffic for maintenance attention, for enhancing reliability, uses for the life of the rolling stock. This activity of maintenance is known as, इसको इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? ठीक है, जो कि डील्ड बाय जोनल रेलवेज वर्कशॉप एंड MLR शॉप्स। राइट आंसर सॉरी ऑप्शंस है पीरियडिक ओवरहॉलिंग एंड मिड लाइफ रीबिल्डिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक्स, second option period overhauling and intermittent overhauling, third option periodic overhauling and top overhauls, fourth option periodic overhauling and cleaning, topping up supplies, yard pit line examinations। right answer है periodic overhauling and midlife rebuilding of rolling stock। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 periodic overhauling and midlife rebuilding of rolling stock। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? बेसिक पर्पस ऑफ कॉस्टिंग इन इंडियन रेलवे प्रोडक्शन यूनिट इज टू अराइव एट द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईच आइटम ऑफ रोलिंग स्टॉक so that decisions on acquisition of rolling stock can be made on rational and scientific basis। सेकेंड स्टेटमेंट है सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग विल डिफर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वर्क कैरिड आउट। कॉस्टिंग सिस्टम टू बी एडॉप्टेड इन रेलवे प्रोडक्शन यूनिट्स आर प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम्स फॉर व्हील मैन्युफैक्चर, फाउंड्री अकाउंट्स
and similar activities and batch costing system for rolling stock production. और स्टेटमेंट 3 तीन स्टेटमेंट है. थर्ड स्टेटमेंट है कॉस्टिंग सिस्टम्स कैन बी फैसिलिटेट ग्रेटली आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ ERP इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम्स in all the production units and workshop of IR. In order to enable introduction of ERP, Railway Board production units as well as zonal railway must have digitized database details of all assets right from the time of proposal for acquisition till their condemnation. Details of every expenditures on manufacturing and maintaining each assets of the mechanical department must be available on the system. Options है 1 and 2 only are correct, 2 and 3 only correct, 1 and 2 are correct but statement 3 correct, partially correct मतलब. Fourth option है statement 1, 2 and 3 are correct. Right answer है statement 1, 2 and 3 all are correct. Question number 66. Provident fund contribution to SOP staff to be classified as option SOP on cost, general on cost, परफॉर्मा ऑन कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑन कॉस्ट. राइट आंसर है प्रोफॉर्मा ऑन कॉस्ट. ऑप्शन 3 प्रोफॉर्मा ऑन कॉस्ट. प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन टू सॉप स्टाफ क्या बोलेंगे प्रोफॉर्मा ऑन कॉस्ट. क्वेश्चन नंबर 67. फॉर अप्रूवल ऑफ AAC ऑफ A, B and C कैटेगरी आइटम्स वेटिंग ऑफ हेड क्वार्टर फाइनेंस इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर. वेटिंग ऑफ हेड क्वार्टर फाइनेंस किस में चाहिए. ऑप्शन ए कैटेगरी में या बी कैटेगरी में या ए एंड बी दोनों कैटेगरी में या ए बी एंड सी तीनों कैटेगरी में. राइट आंसर इज ए कैटेगरी. ठीक है, इसके अप्रूवल के लिए वेटिंग ऑफ हेड क्वार्टर चाहिए होगा अगर ए कैटेगरी में करना है तो. ऑप्शन 1 ए कैटेगरी. क्वेश्चन नंबर 68. प्रोफॉर्मा ऑन कॉस्ट चार्ज आर लेवाइड ऑन वर्क्स एग्जीक्यूटेड फॉर. ऑप्शन अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, स्टोर डिपार्टमेंट्स, POH ऑफ अदर रेलवेज या अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट एंड POH ऑफ अदर रेलवेज. राइट आंसर इज अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. ऑप्शन 1 प्रोफॉर्मा ऑन कॉस्ट चार्ज. ठीक है, अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए होता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 69. द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय वेरियस शॉप्स एंड डिपार्टमेंट्स इन प्रोडक्शन यूनिट्स वेयर बैच कॉस्टिंग सिस्टम इज इन वर्क is collected under the system of works order, as in case of workshops, and the works order are two kinds. Statement 1. Production work orders for collection of cost of works or job undertaken in shops. Statement 2. Non-production work orders for collection of indirect expenses, which constitutes overheads. Statement 3. Job works order for arriving at unit costs. Options हैं 1 and 2 only are correct, all statements are correct या all the statements are incorrect या statement 2 and 3 only correct. Right answer is statement 1 and 2 are only correct. सिर्फ 1 and 2 correct है. Right answer is 1. Question number 70. What is transfer price? Transfer price क्या होता है. स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2. ठीक है. स्टेटमेंट 1 क्या कहता है. द ट्रांसफर प्राइस फॉर ईच प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय प्रोडक्शन यूनिट शुड बी फिक्स्ड ड्यूली टेकिंग इनटू अकाउंट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर एज पर द कॉस्ट रिपोर्ट ड्यूली प्रोवाइडिंग फॉर एस्केलेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर स्टोर्स एक्सेट्रा. द ट्रांसफर प्राइस शुड बी द बेस फॉर ट्रांसफर ऑफ डेबिट थ्रू रेलवे बोर्ड टू अदर रेलवेज फॉर द रोलिंग स्टॉक सप्लाइड. स्टेटमेंट 2 कहता है द ट्रांसफर प्राइस आर द प्रोविजनली प्रीडिटरमाइंड प्राइस विच आर एडवाइज्ड बाय द प्रोडक्शन यूनिट्स टू रेलवे बोर्ड फॉर अप्रूवल इन वेरियस बजटरी रिव्यूज. हाउएवर द सेम शुड कन्फर्म टू गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. स्टेटमेंट 3 क्या कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ए न्यू टाइप ऑफ रोलिंग स्टॉक द ट्रांसफर प्राइस शुड बी फिक्स्ड बेस्ड ऑन द एस्टिमेट ड्यूली टेकिंग इनटू अकाउंट द करंट लेबर रेट, द करंट डायरेक्ट स्टोर्स and prevailing overhead percentages. The credit for the rolling stock dispatched should be realized based on the transfer price. Options है all statements 1, 2 and 3 are true या statement 2 is false, statement 1 and 3 are only true और last option all the statements 1, 2 and 3 are false. Answer is all statement 1, 2 and 3 are
ट्रू। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 70 तक हमने देखा इस पार्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टाटा, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।